اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام یا قدوس سے۔ قدوس وہ ذات جو جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، رحمان بھی ہے اور غفور الرحیم بھی ہے۔ یقیناً یہ بابرکت ذات اللہ پاک کی ہی ہے۔ اس میں پاک القدوس کے معنی بے عیب اور بے نظیر ذات کے ہیں۔ یہ اللہ پاک کا نام اتنا بابرکت ہے کہ اسے ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کے ذکر میں شامل کیا گیا ہے، جس کی تسبیح ساتوں آسمانوں کے فرشتے کرتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھاتے ہیں ان فرشتوں کے لیے بھی یہ ذکر خاص کیا گیا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی کرسی کے گرد ہے ان کے لیے بھی یہی ذکر خاص ہے، اور جو لوح و قلم پر مقرر ہیں ان کے لیے بھی یہی ذکر خاص کیا گیا ہے۔ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ اللہ پاک کا کوئی بھی نام اپنے اندر علم و شعور اور حقیقت کے بے پناہ خزانے رکھتا ہے، جس کی حقیقت کو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو مزید انتظار کو ختم کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں وظیفہ نمبر 1 سے۔ وظیفہ نمبر 1، اگر کوئی شخص کسی بھی موذی مرض میں مبتلا ہے، چاہے وہ بیماری لا علاج ہے یا پھر قابل علاج ہے، شوگر، بلڈ پریشر، کینسر، بواسیر یا پھر دنیا کی کوئی بھی بیماری ہو، اگر کوئی شخص اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کو 101 مرتبہ اور 21 مرتبہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح اور 101 مرتبہ یا قدوس کا ورد رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو اس بیماری سے پاک فرما دیتی ہے۔ وظیفہ نمبر 2، اگر کوئی شخص اس سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح اور یا قدوس کا وظیفہ کر لیتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو دنیا کی تمام پریشانیوں سے بے پرواہ کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے تمام کام اپنے ذمے لے لیں گے، اور جس کا کام رب اپنے ذمے لے لے تو سمجھو پھر اس کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس وظیفہ کے لیے آپ اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کو 101 مرتبہ اور 21 مرتبہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح اور 101 مرتبہ یا قدوس ورد کرنے کی عادت ڈال لیں۔ وظیفہ نمبر 3، اگر کسی بہن کی شادی نہیں ہو رہی، لوگ رشتہ دیکھنے آتے ہیں اور دیکھ کر چلے جاتے ہیں، یا پھر کسی جگہ منگنی ہوئی ہے اور وہ نکاح نہیں کر رہے، یا پھر نکاح کر کے رخصتی نہیں کر رہے، تو ایسے میں اس بہن کو چاہیے کہ وہ اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کو 101 مرتبہ اور 21 مرتبہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح اور 101 مرتبہ یا قدوس کا ورد کرے، اور اس کے بعد ہر نماز کے بعد 101 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھنے کا معمول بنا لے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے چند دن میں ہی اس کا رشتہ اچھی جگہ طے پا جائے گا۔ اگر رشتہ ہوا ہے تو چند دن میں ہی رخصتی کے اسباب اللہ کی ذات غیب سے پیدا فرما دیں گے۔ وظیفہ نمبر 4، اگر کوئی بھائی یا بہن یہ چاہتی ہے یا چاہتا ہے کہ اس کو اولاد نرینہ حاصل ہو تو اس کے لیے آپ
اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی اور درمیان میں آپ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم و اتوب الیہ کو 101 مرتبہ اور 21 مرتبہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کا ورد کرنے کا معمول بنا لیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد کی کامیابی کی دعا مانگیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت جلد آپ کی گود خوشیوں سے بھر دیں گے۔ وظیفہ نمبر 5، اگر کوئی شخص سفر پر جانے سے پہلے چند مرتبہ یا قدوس پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیتا ہے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اسے سفر میں بالکل تھکاوٹ نہیں ہوگی اور وہ بالکل فریش اپنی منزل تک پہنچ جایا کرے گا۔ وظیفہ نمبر 6، اگر کوئی بھی شخص کسی جگہ سے دشمنی ختم کرنا چاہتا ہے یا پھر کوئی شخص ایسا جو اس کے خلاف لوگوں میں بدگمانی پھیلاتا ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ شخص یہ سب کچھ بند کر دے تو اس کے لیے آپ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک اور درمیان میں آپ 101 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم و اتوب الیہ اور 21 مرتبہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح اور اس کے بعد 101 مرتبہ یا قدوس کسی بھی میٹھی چیز پر پڑھ کر دم کریں اور وہ میٹھی چیز اس کو کھلا دیں۔ انشاءاللہ وہ سب کچھ چھوڑ کر آپ سے محبت سے پیش آئے گا۔ وظیفہ نمبر 7، اگر میاں بیوی میں جھگڑے رہتے ہوں، گھر میں نااتفاقی ہو، شوہر بیوی سے نفرت کرتا ہو، ایسے میں اس بہن کو چاہیے کہ وہ اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم و اتوب الیہ کو 101 مرتبہ اور 21 مرتبہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کا ورد کریں اور اس کے بعد کسی بھی میٹھی چیز پر دم کر کے شوہر کو کھلا دیا کریں۔ انشاءاللہ چند روز بھی نہ گزرنے پائیں گے کہ شوہر کا رویہ بالکل تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا اور وہ آپ سے پیار محبت سے پیش آئے گا اور لڑائی جھگڑے اللہ کے حکم سے بالکل بند ہو جائیں گے۔ وظیفہ نمبر 8، اگر کوئی شخص جادو جنات میں گھرا ہوا ہے، دشمنوں کے وار اور حاسدین کے حسد کا شکار ہے یا کسی کو نظر بد کا مسئلہ ہے یا پھر کوئی بھی روحانی مسئلہ ہے تو ایسے میں اس شخص کو چاہیے کہ وہ اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی اور درمیان میں استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم و اتوب الیہ کو 101 مرتبہ اور 21 مرتبہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کا ورد کریں۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ ادا کر لینے کے بعد وہ شخص جادو جنات دشمنوں کے وار حاسدین کے حسد سے محفوظ ہو جائے گا۔ وظیفہ نمبر 9، اگر کوئی شخص کسی بھی مقصد کے لیے اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی اور درمیان میں 101 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم و اتوب الیہ کو 101 مرتبہ اور 21 مرتبہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح اور 313 مرتبہ یا قدوس کا روزانہ ورد کرتا ہے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس کا وہ مقصد اس کو 40 دن کے اندر اندر مل جاتا ہے، بشرط یہ کہ اس کا وہ مقصد جائز ہو اور اس کے حق میں بہتر ہو۔ وظیفہ نمبر 10، اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کا دل نماز میں نہیں لگتا، عبادت کی توفیق اسے نہیں ملتی، تسبیحات ذکر و اذکار کے لیے اسے وقت نہیں ملتا، ایسے میں اس شخص کو چاہیے کہ وہ اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی
और दरमियान में अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह को 101 मरतबा और 21 मरतबा सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह और 313 मरतबा या कुद्दूस का विर्द करे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात उसे अंदरूनी तौर पर पाक करके अपनी इबादत की जरूर तौफीक अता फरमाएंगे। वजीफा नंबर 11, अगर कोई शख्स अपने दुश्मनों से परेशान है या फिर किसी दुश्मन से उसे जान का खतरा है तो ऐसे में उस शख्स को चाहिए कि वो अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह को 101 मरतबा और 21 मरतबा सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह का विर्द करें। इंशाअल्लाह वो शख्स दुश्मनों के वार से हमेशा के लिए महफूज हो जाएगा और दुश्मन चाहकर भी किसी तरह का नुकसान नहीं दे सकेगा और ना ही उसके खिलाफ कोई बात कर सकेगा। वजीफा नंबर 12, अगर कोई शख्स गुनाहों से बचना चाहता है और एक पाकीज़ा जिंदगी बसर करना चाहता है मगर आज के इस पुरफितन दौर में वो बच नहीं पाता, ऐसे में उस शख्स को चाहिए कि वो अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी और दरमियान में 101 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह और 21 मरतबा सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह और उसके बाद 313 मरतबा या कुद्दूसु विर्द करने का मामूल बना ले तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला की ज़ात उसका दिल तमाम गुनाहों से मोड़ देंगे और उस शख्स को कामिल हदायत नसीब होगी। वजीफा नंबर 13, काला जादू से शादी और रिश्ता टूट जाना एक आम बात है और 90% काला जादू रिश्तों को तोड़ने के लिए ही किया जाता है। रिश्तों में मियाँ बीवी की मोहब्बत, शादी और बेटी के लिए जो रिश्ता पक्का किया जाता है उन पर हद से ज्यादा जादू किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बेटी के रिश्ता की हिफाजत के लिए इसमें आजम या कुद्दूस का आसान वजीफा बता रहे हैं। याद रहे कि बेटी के रिश्ता को नजरे बद बहुत जल्दी लगती है और उस पर बेहद आसानी से काला जादू भी हो जाता है। अगर किसी बेटी का रिश्ता पक्का होने से पहले या बाद में किसी किस्म के इख्तलाफात सामने आते हैं तो ये अलामत बेटी के रिश्ता पर जादू या नजरे बद की हो सकती है। लिहाजा आपको रूहानी हिफाजत की जरूरत है और रूहानी हिफाजत के लिए या कुद्दूस का वजीफा बेटी के लिए अफजल है। अगर किसी बेटी का रिश्ता किसी जगह पक्का हो गया है या उसके रिश्ता की बात चल रही है तो ऐसे में उस बेटी को चाहिए कि वो रोजाना फजर की नमाज के बाद अव्वल व आखिर 3 मरतबा दुरूद पाक विर्द करे और दरमियान में आप 21 मरतबा सूरह फातिहा और 786 मरतबा इसमें आजम या कुद्दूस और 11 मरतबा सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह मोहब्बत से विर्द करें और ये वजीफा आप 7 दिन तक लगातार जारी रखें। 7 दिन के बाद आप रोजाना 10 मरतबा दुरूद इब्राहिमी और 7 मरतबा सूरह फातिहा और 7 मरतबा सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह और 100 मरतबा इसमें आजम या कुद्दूस विर्द करने की आदत डाल लें और ये अमल आप शादी होने तक जारी रखें। इंशाअल्लाह जल्दी आपकी शादी और रिश्ता की परेशानी का खात्मा हो जाएगा। और अगर किसी बहन की शादी पर बंदिश है तो वो बहन भी ये वजीफा कर सकती है। इंशाअल्लाह इस वजीफा की बरकत से उस बहन की शादी की हर बंदिश का खात्मा हो जाएगा। वजीफा नंबर 14,
काला जादू बीमारी की तरह इंसान के जिस्म, ख्वाहिशात और जज्बात पर अपनी अलामात जाहिर करता है। लिहाजा अगर आप काला जादू का शिकार हैं तो उसकी वजह से आपके जिस्म, जज्बात और ख्वाहिशात में मदरजा झैल 10 अलामात जाहिर हो सकती हैं। काला जादू की तस्दीक अलामात के जरिए ही की जाती है। लिहाजा अगर आप काला जादू का शिकार हैं तो उसकी वजह से आप पर मदरजा झैल 10 अलामात जाहिर हो सकती हैं। काला जादू की वजह से आपके दिल में ये शक पैदा हो सकता है कि काला जादू सिर्फ बकवास है। काला जादू की वजह से आप में शदीद गुस्सा और जिद पैदा हो सकती है। काला जादू की वजह से आपको सर दर्द और कमर दर्द का मसला लाहक हो सकता है। काला जादू आप में फजूल खर्ची की आदत भी पैदा कर सकता है। काला जादू की वजह से आपको चापलूसी बहुत अच्छी लगने लगेगी। काला जादू की वजह से आप डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर और कमर दर्द की बीमारी का शिकार हो सकते हैं। काला जादू की वजह से आपने जो भी काम हिस्सेदारी की बुनियाद पर किए होंगे उनमें आपको नुकसान होने लगेगा। काला जादू की वजह से आप खुदनुमाई की आदत में मुब्तला हो सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो काला जादू मियाँ बीवी के दरमियान इख्तलाफ पैदा करता है। काला जादू की वजह से गैर फर्माबरदार दोस्तों को आप अपना दुश्मन महसूस करेंगे। काला जादू आपके दिल में इंतकाम लेने की शिद्दत पैदा कर देगा। काला जादू की वजह से आपको आपके दोस्तों की तरफ से परेशानी हासिल होने लगेगी। कुछ लोग आपकी गीबत और मुखालफत करने लगेंगे। बयान की गई अलामात में से अगर 8 अलामात आप में मौजूद हैं तो इसका मतलब आप कम या ज्यादा काला जादू का शिकार हैं। काला जादू का तोड़ का अमल करने से पहले हम ये जान लें कि काला जादू की पहचान क्या होती है। अगर आप काला जादू मौजूद होने या न होने की मुकम्मल तस्दीक करना चाहते हैं तो आप हमारा बताया गया रूहानी अमल मंगल के दिन शुरू करें। इस रूहानी अमल के लिए आप अपने सर का एक बाल हासिल करके रात के वक्त अपने कमरे में बैठ जाएं और उस कमरे में आपके अलावा कोई दूसरा ना हो। कमरे में अगरबत्ती जलाएं ताकि कमरे में खुशबू पैदा हो जाए और उसके बाद आप अपने सर के बाल को अपने दाएं हाथ की मुट्ठी में बंद कर लें। उसके बाद आप 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर आंखें बंद कर लें और लगातार दिल ही दिल में या कुद्दूस का विर्द जारी रखें। इस अमल के दौरान आपका चेहरा मशरिक की तरफ होना चाहिए। बयान की गई पोजीशन में आप 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट तक खामोशी से बैठें। 5, 10 या 15 मिनट तक आपके दिल की धड़कन तेज हो जाए, आपको शदीद खौफ महसूस होने लग जाए, आपको कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास हो, आपको जिस्म पर भारीपन महसूस होने लगे, आपको कानों में खामोश सरगोशी महसूस हो या आपकी गर्दन खुद ब खुद किसी सिमत मुड़ जाए, तो इसका मतलब ये है कि आप या आपके घर पर काला जादू के असरात हैं। काला जादू के असरात एक फर्द से दूसरे फर्द में मुंतकिल हो सकते हैं। लिहाजा अगर फैमिली में एक शख्स काला जादू का शिकार है तो उसकी वजह से उसकी पूरी फैमिली में परेशानी आ सकती है। लिहाजा काला जादू की तस्दीक होने के बाद आप काला जादू के इलाज की तरफ तवज्जो जरूर दें। इसलिए काला जादू की तस्दीक होने के बाद आप काला जादू के इलाज की तरफ तवज्जो जरूर दें ताकि आपको जल्द अज जल्द काला जादू से निजात हासिल हो जाए। अब आते हैं काला जादू के तोड़ की तरफ। काला जादू से शिफा और हिफाजत के लिए बहुत सी दुआएं मौजूद हैं। इन दुआओं में सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह और इस्मे आज़म या कुद्दूस एक मुजर्रब दुआ और इस्मे आज़म हैं। लिहाजा अगर कोई भाई या बहन काला जादू से जल्द शिफा हासिल करना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि वो
वो तमाम जिंदगी काला जादू से महफूज रहें। इस मकसद के लिए आप जुमा के दिन इशा की नमाज अदा करने के बाद सबसे पहले 10 मरतबा दुरूद इब्राहिमी विर्द करें और उसके बाद आप 300 मरतबा सुब्बून कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह का विर्द करें और फिर 1100 मरतबा या कुद्दूस विर्द करें और आखिर में आप दोबारा 10 मरतबा दुरूद इब्राहिमी का विर्द करें और ये अमल आप 21 दिन तक जारी रखें। इंशाअल्लाह 21 दिन में ही आपको हर तरह के काला जादू और बंदिश से निजात मिल जाएगी। इसके अलावा सूरह फलक और सूरह नास काला जादू से शिफा और हिफाजत के लिए बेहतरीन सूरह मुबारका हैं। लिहाजा जो भाई या बहनें हर नमाज के बाद 1 मरतबा सूरह फलक और 1 मरतबा सूरह नास विर्द करते हैं उनको जल्द ही काला जादू से शिफा मिल जाती है और वो हमेशा काला जादू और दुश्मनों से भी महफूज रहते हैं। सूरह फलक और सूरह नास हिफाजत की बेहतरीन दुआएं भी हैं, यानी सूरह फलक और सूरह नास की बरकत से आपकी जान, माल, इज्जत, औलाद और घर काला जादू, दुश्मन और हर किस्म के नुकसानात से हमेशा महफूज रहेंगे। बाज़ औक़ात किसी फर्द को काला जादू से शिफा हासिल नहीं होती, बल्कि वक्त गुजरने के साथ साथ उनके हालात बदतरीन हो जाते हैं। काला जादू जब पुराना हो जाता है तो हम उसे दायमी काला जादू कहते हैं, जो कि आसानी से दूर नहीं होता। लिहाजा दायमी काला जादू से निजात हासिल करने के लिए आप जुमा के दिन इशा की नमाज अदा करने के बाद सबसे पहले 10 मरतबा दुरूद इब्राहिमी विर्द करें। उसके बाद आप 786 मरतबा सुब्बून कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह का विर्द करें और फिर इसमें आजम या कुद्दूस को 2500 मरतबा विर्द करें और आखिर में आप दोबारा 10 मरतबा दुरूद इब्राहिमी विर्द करें। और इसके साथ साथ आप बताया गया वजीफा शुरू करने से पहले सुब्बून कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह और इसमें आजम या कुद्दूस के 2 अदद नक्श हमसे मंगवा लें। एक नक्श आप अपने पास रख लें और एक नक्श घर में किसी भी पाक साफ जगह पर रख दें। ये नक्श मखसूस औकात में तमाम तर लवाजमात के साथ और तमाम तर शराइत को मद्देनजर रखते हुए उस शख्स के नाम के मुताबिक तैयार किए जाते हैं जो कि हमें नक्श की रिक्वेस्ट करता है। इसलिए ये नक्श अल्लाह की मदद से कभी खता नहीं जाते, क्योंकि इन नकूश को वो हजरात तैयार करते हैं जो कि 5 वक्त की नमाज की पाबंदी के साथ साथ मुत्तकी और परहेजगार होते हैं और इसके साथ साथ उन्होंने इसमें आजम या कुद्दूस की ज़कात अकबर अदा की हुई होती है। सुब्बून कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह हर किस्म के काला जादू का ताकतवर तोड़ है। लिहाजा अपनी जान, माल, इज्जत, औलाद और घर की हिफाजत के लिए आप सुब्बून कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह का नक्श अपने घर में जरूर रखें। इंशाअल्लाह आपको सुब्बून कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह और इसमें आजम या कुद्दूस के नक्श की बरकत से जादू से निजात भी मिल जाएगी और आप आइंदा जिंदगी हर किस्म के जादू, जिन्नात, दुश्मन और शैतान से भी महफूज रहेंगे। वजीफा नंबर 15। नजरेबाद एक अकीदा है जो दुनिया की मुख्तलिफ सकाफतों में पाया जाता है। नजरेबाद को इस्लाम से पहले भी तस्लीम किया जाता था और इस्लाम ने भी नजरेबाद के मौजूद होने और उसके नुकसानात की तस्दीक की है। नजरेबाद एक फर्द से दूसरे फर्द में आंखों के जरिए मनफी तवानाई के मुंतकिल होने का नाम है, लेकिन कोई फर्द अंधे शख्स की नजरेबाद का भी शिकार हो सकता है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि नजरेबाद किसी फर्द की मनफी सोच की मुंतकिली का नाम है। ये सोच आंखों के जरिए भी किसी शख्स में दाखिल हो सकती है
और महज सोच के जरिए भी दाखिल हो सकती है। याद रहे कि हर इंसान की सोच अच्छे या बुरे असरात की हामिल होती है। हमारी सोच के हमारी जिंदगी पर अच्छे या बुरे असरात मुरतब होते हैं। इसी तरह जब हमारी सोच की लहरें खला में गर्दिश करते हुए किसी दूसरे ज़हन से टकराती हैं तो वहाँ भी ये अच्छे या बुरे असरात मुरतब करती हैं। लेकिन नजर बद की वजह से फर्द पर हमेशा बुरे असरात ही मुरतब होते हैं। आज की इस वीडियो में हम कुरान और हदीस की रोशनी में नजर बद के नुकसानात के बारे में बताएंगे। नजर बद की वजह से हर फर्द मुख्तलिफ किस्म के नुकसानात से दो चार हो सकता है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको नजर बद के ऐसे नुकसानात के बारे में बताएंगे जिसका आम इंसान सामना करते हैं। नजर बद का दारोमदार उस शख्स पर होता है जिसकी नजर बद से कोई भी दूसरा शख्स मुतासिर होता है। अगर नजर बद से मुतासिर करने वाला शख्स को कोई बैरूनी या फिर अंदरूनी बीमारी है तो ये बीमारी उस शख्स को लग सकती है जो कि नजर बद का शिकार है। इसके अलावा नजर बद से मुतासिर करने वाला शख्स की बुरी आदत भी नजर बद से शिकार अफराद में कुछ न कुछ मुंतकिल हो सकती हैं। ये बात अकल से हटकर है, लेकिन ये सच है और ऐसा दायमी नजर बद में देखा गया है। दायमी नजर बद का एहसास आम अफराद को नहीं होता, लेकिन ये नजर बद कई सालों तक फर्द को मुतासिर करती है। दायमी नजर बद हमेशा भयानक नुकसानात की वजह बनती है। लिहाजा किसी फर्द को नजर बद का एहसास हो या ना हो, दोनों सूरतों में उसे हिफाजत की दुआएं जरूर विर्द करनी चाहिए। आर्जी नजर बद की वजह से फर्द को जिन नुकसानात का सामना होता है वो आर्जी होते हैं, लेकिन आर्जी नजर बद की वजह से फर्द अचानक और गैर मुतवक्के किसी नुकसान से दो चार होता है और उसके बाद फर्द की तबीयत में बेहतरी आना शुरू हो जाती है। अचानक दिल का दौरा पड़ना, अचानक हादसा होना और किसी चीज का अचानक टूट जाना, अचानक कारोबारी नुकसान होना, अचानक हमल का जाया हो जाना और अचानक बच्चे का जिद करना या रोना शामिल हो सकते हैं। नजर बद की वजह से फर्द को बेचैनी होती है। नजर बद घबराहट, डिप्रेशन और ब्लड प्रेशर की वजह बनती है। नजर बद फर्द में उकताहट पैदा करती है। नजर बद की वजह से फर्द को सर दर्द और दर्द शकीका हो सकता है। नजर बद की वजह से फर्द को उल्टी हो सकती है। नजर बद की वजह से फर्द का किसी काम में दिल नहीं लगता। नजर बद बाजू में दर्द पैदा कर सकती है। नजर बद फर्द को घुटन का एहसास देती है। नजर बद फर्द में तन्हाई, अंधेरे और मौत का खौफ पैदा करती है। नजर बद की वजह से अचानक हादसा हो सकता है। नजर बद की वजह से नौजवानों को जिद्दी मोहब्बत हो सकती है। नजर बद की वजह से नौजवान नशे के आदी भी हो सकते हैं। नजर बद फर्द को गलत फैसला लेने पर मजबूर करती है। नजर बद फर्द में जिद और अना की नशोनुमा करती है। नजर बद बुरी किस्मत की वजह बनती है। नजर बद फर्द में दायमी बीमारी ला सकती है। नजर बद की वजह से शादी और रिश्ता टूट सकता है। नजर बद की वजह से औलाद वालिदैन से बदतमीजी कर सकती है। नजर बद की वजह से बाज बहनें बे औलाद रह सकती हैं। नजर बद तलाक की वजह बन सकती है। नजर बद शोहर की मोहब्बत को नफरत में बदल सकती है। नजर बद की वजह से किसी को तलाक हो सकती है। नजर बद फर्द को जिंदगी के हर मैदान में शदीद नाकामी से दो चार कर सकती है। नजर बद लगातार कारोबारी नुकसान की वजह बन सकती है। नजर बद की वजह से फर्द को मुआशरे, फैमिली और ऑफिस में शदीद मुखालफत का सामना हो सकता है। नजर बद की वजह से बच्चे अक्सर बुरी सोहबत का शिकार हो जाते हैं। कोई फर्द जिन्नात की नजर बद का शिकार भी हो सकता है। जिन्नात की नजर बद ज़हनी अमराज की वजह बन सकती है। नजर बद की वजह से फर्द को रिज़्क़ की तंगी का सामना हो सकता है। नजर बद की वजह से फर्द की जॉब खत्म हो सकती है। नजर बद बादशाह को भिखारी बना सकती है। अब आते हैं नजर बद के तोड़ की तरह। अंडे से नजर बद उतारने का रवाज इस्लाम से पहले भी था और आज भी ये तरीका
इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोगों को यकीन है कि अंडा मनफी तवानाई जज़ब कर सकता है। इसके अलावा अंडा इंसानी जिस्म में तवानाई का लेवल मुतवाजन करने में भी मदद देता है। लिहाजा अंडे के जरिए हम मदरजा झैल तरीके से मनफी तवानाई और नजर बद को खत्म कर सकते हैं। जो फर्द नजर बद का शिकार हैं उनको चाहिए कि वो किबला की तरफ मुंह करके बैठ जाएं। जो फर्द नजर बद का शिकार है उसके सामने अंडा और पानी का एक गिलास रख दें और मरीज के सामने एक मोमबत्ती भी जलाएं। अगर आप मोमबत्ती नहीं जला सकते तो एक चिराग जलाएं या फिर बावजह मजबूरी आप अगरबत्ती भी जला सकते हैं। उसके बाद आप अंडे को अपने दाएं हाथ में लेकर मरीज के ऊपर से 7 चक्कर दें। उस दौरान आप सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह और या कुद्दूस का विर्द करते रहें। जब 7 चक्कर मुकम्मल हो जाएं तो उसके बाद आप पानी के गिलास पर दम करके ये पानी मरीज को पिला दें और अंडा किसी जगह रख दे जहाँ से ये अंडा कोई परिंदा या फिर कोई जानवर खा ले। ये अमल 3 दिन तक लगातार करने से 3 दिन में ही मरीज को नजर बद से शिफा मिल जाती है। बाज लोग इस अंडे को तोड़कर पानी के गिलास में डाल देते हैं। ऐसा करने से बाज औकात अंडे में अजीब शक्लें बन जाती हैं और बाज औकात अंडे से खून भी बरामद होता है। याद रहे कि ऐसा करने का कोई मकसद नहीं होता बल्कि ये तरीका लोगों की परेशानी में इजाफा करने की वजह बनता है। लिहाजा अंडे से नजर बद खत्म करने का जो तरीका आपको बताया गया है आप उसी को करें। इंशाअल्लाह आपको नजर बद से जल्द निजात हासिल हो जाएगी। इसके अलावा नजर बद से निजात और नजर बद से हिफाजत के लिए आप रोजाना फजर और इशा की नमाज के बाद सूरह फलक, सूरह नास और आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर भी दम करें और अपने बच्चों पर भी दम करें। इंशाअल्लाह आपकी जान, माल, औलाद और घर हमेशा अल्लाह की हिफाजत में रहेंगे। नजर बद से शिफा और हिफाजत के लिए दूसरा कुरानी अमल नक्श सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह है। यानी आप नक्श सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह को हमसे मंगवाकर अपने घर में भी रखें और अपने गले में भी पहने और अपने बच्चों के गले में भी पहनाएं। इंशाअल्लाह नक्श सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह की बरकत से आप हमेशा नजर बद, काला जादू, दुश्मन, हादसात, जिन्नात और बुरी तकदीर से महफूज रहेंगे। बाज़ औक़ात किसी फर्द को नजर बद से शिफा हासिल नहीं होती बल्कि वक्त गुजरने के साथ साथ उनके हालात बदतरीन होते जाते हैं। नजर बद जब पुरानी हो जाती है तो हम उसे दायमी नजर बद कहते हैं जो कि आसानी से दूर नहीं होती। लिहाजा दायमी नजर बद से निजात हासिल करने के लिए आप हर नमाज के बाद 7 मरतबा सूरह नास, 7 मरतबा सूरह फलक, 7 मरतबा सूरह इखलास और 7 मरतबा सूरह काफिरून और उसके बाद 101 मरतबा सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह और 313 मरतबा या कुद्दूस का 3 दिन तक विर्द करें। और ये विर्द शुरू करने से पहले सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह और चारों कुल शरीफ का नक्श हमसे लाजमी मंगवा लें। एक नक्श आप अपने पास रख लें और एक नक्श आप घर में किसी भी पाक साफ जगह पर रख दें। ये नक्श मखसूस औकात में तमाम तर लवाजमात के साथ और तमाम तर शराइत को मद्देनजर रखते हुए तैयार किए जाते हैं। इसीलिए ये नक्श अल्लाह की मदद से कभी खता नहीं जाते क्योंकि इन नकूश को वो हजरात तैयार करते हैं जो कि 5 वक्त की नमाज की पाबंदी के साथ साथ मुत्तकी और परहेजगार होते हैं और इसके साथ साथ उन्होंने इसमें आजम या कुद्दूस की ज़कात अकबर अदा की हुई होती है। सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह और या कुद्दूस का ये इसमें आजम हर किस्म की नजर बद का ताकतवर तोड़ है। लिहाजा अपनी जान, माल, इज्जत, औलाद और घर की हिफाजत के लिए आप सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह का
नक्श अपने घर में जरूर रखें। इंशाअल्लाह आपको सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह और इस्म आज़म या कुद्दूस के नक्श की बरकत से नजरे बद से निजात भी मिल जाएगी और आप आइंदा जिंदगी हर किस्म के जादू, जिन्नात, दुश्मन और शैतान से भी महफूज रहेंगे। वजीफा नंबर 16, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह को और इस्म आज़म या कुद्दूस को विर्द करने के बुजुर्गों ने बहुत से तरीके बताए हैं। हम सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह और इस्म आज़म या कुद्दूस को विर्द करने का एक ऐसा तरीका बताते हैं जिसकी बरकत से आपको आपकी सभी परेशानियों से निजात मिल जाएगी। इस मकसद के लिए आप जुमा के दिन इशा की नमाज के बाद किसी भी पाक जगह पर बैठ जाएं और उसके बाद आप अव्वल 10 मरतबा दुरूद इब्राहिमी विर्द करें और उसके बाद आप 300 मरतबा सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह और 786 मरतबा इस्म आज़म या कुद्दूस विर्द करें और आखिर में आप 10 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर ये अमल बंद कर दें। ये अमल आपने 14 दिन तक करना है। इंशाअल्लाह सिर्फ 14 दिन में ही आपको आपकी हर परेशानी से निजात हासिल हो जाएगी। बयान किया गया रूहानी अमल बेहद मुजरब है। लाखों अफराद ने इस अमल से दुनियावी बरकत हासिल की है। वजीफा नंबर 17, अगर कोई भाई या बहन शादी ना होने की वजह से परेशान है तो सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह की बरकत से आपको इस परेशानी से निजात अल्लाह के हुक्म से 7 दिन में मिल जाएगी। लिहाजा शादी की हर परेशानी से निजात पाने के लिए आप इशा की नमाज अदा करने के बाद सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी विर्द करें। उसके बाद आप 70 मरतबा सूरह इखलास विर्द करें और उसके बाद आप 300 मरतबा सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह का विर्द करें और आखिर में फिर 786 मरतबा या कुद्दूस का विर्द करें और फिर आप 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर ये अमल बंद कर दें। इसी तरह ये अमल आप 7 दिन तक जारी रखें। इंशाअल्लाह 7 दिन के बाद आपकी शादी की हर परेशानी गैबी मदद से दूर होना शुरू हो जाएगी। वजीफा नंबर 18, अगर कोई बहन शोहर की नफरत और गुस्सा का शिकार है तो सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह की बरकत से शोहर की नफरत को मोहब्बत में तब्दील किया जा सकता है। शादी के बाद हर बीवी को कभी न कभी शोहर की नफरत और गुस्सा का सामना करना पड़ता है। शोहर की नफरत और गुस्सा की वजह नजरेबाद, काला जादू और गैर औरत की मोहब्बत हो सकती है। लिहाजा शोहर के दिल से बीवी की नफरत, गुस्सा और गैर औरत की मोहब्बत को खत्म करने के लिए आप 3 दिन तक सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह और इस्म आज़म या कुद्दूस का विर्द करें। इंशाअल्लाह सिर्फ 3 दिन में ही बीवी को उसके शोहर की मोहब्बत हमेशा के लिए हासिल हो जाएगी। शोहर की मोहब्बत हासिल करने के लिए आप जुमा के दिन फजर की नमाज के बाद 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी विर्द करें और उसके बाद आप 1 मरतबा सूरह अंबिया की तिलावत करें और उसके बाद आप 300 मरतबा सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह का विर्द करें और आखिर में आप 313 मरतबा या कुद्दूस का विर्द करें। ये अमल आपने 3 दिन तक करना है और अमल के दौरान आपने पानी या कोई भी मीठी चीज पास रख लेनी है और अमल मुकम्मल करने के बाद आपने उस पर दम करना है और दम करने के बाद उस मीठी चीज को आप खाने पीने की चीजों में इस्तेमाल करके शोहर को खिला या फिर पिला सकती हैं। अगर आपका शोहर आपसे दूर है तो आप मुकम्मल शोहर का तस्वर रखते हुए भी ये अमल कर सकती हैं। इंशाअल्लाह 3 दिन में ही आपको आपके शोहर की मोहब्बत हमेशा के लिए हासिल हो जाएगी। वजीफा नंबर 19, रब्बी ला तज़रनी फर्दन व अंत खैरुल वारिसीन हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ है। इस दुआ की बरकत से अल्लाह ने हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को
औलाद अता फरमाई थी। लिहाजा अल्लाह की बारगाह से जल्द औलाद हासिल करने के लिए रब्बी ला तज़रनी फर्दों व अंत खैरुल वारिसीन एक मशहूर दुआ है। लिहाजा अगर कोई भाई या बहन अल्लाह की बारगाह से जल्द औलाद हासिल करना चाहते हैं तो इस मकसद के लिए आप 1 पाव बादाम की गिरी और 1 पाव छुहारे हासिल करें और उसके बाद आप फजर की नमाज के बाद 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी विर्द करें और उसके बाद आप 100 मरतबा रब्बी ला तज़रनी फर्दों व अंत खैरुल वारिसीन और 100 मरतबा सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह का विर्द करके बादाम और छुहारे पर दम कर दें और उसके बाद आप 3 बादाम और 5 अदद छुहारे के दाने खा लें और आखिर में आप 3 मरतबा दोबारा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर ये अमल बंद कर दें। इसी तरह ये रूहानी अमल आप हमल होने तक जारी रखें, यानी जब तक आपका हमल न ठहर जाए तब तक आप बादाम और छुहारों पर रोजाना दम करके खाती रहें। मखसूस दिनों में आप नागा कर लिया करें। ये अमल करने से खवातीन का हमल जल्दी ठहर जाता है और अल्लाह की जात उन्हें बेटा भी अता फरमाते हैं। वजीफा नंबर 20। अगर कोई भाई या बहन जॉब ना मिलने की वजह से परेशान है तो जल्द जॉब हासिल करने और जॉब में तरक्की और कामयाबी के लिए सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह का विर्द आपको हमेशा फायदा देगा। लिहाजा जल्द जॉब हासिल करने के लिए आप हर नमाज के बाद 70 मरतबा सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह का विर्द करें और ये अमल आप जॉब मिलने तक जारी रखें। इंशाअल्लाह जल्दी आपको आपकी पसंद की जॉब हासिल हो जाएगी। वजीफा नंबर 21। बाज अफराद किसी काम में कामयाबी हासिल करने के लिए शदीद मेहनत करते हैं लेकिन उसके बावजूद उन्हें कामयाबी हासिल नहीं होती। इसके बरक्स बाज अफराद को कम मेहनत में जिंदगी के हर मैदान में कामयाबी हासिल हो जाती है। ऐसा बुरी तकदीर की वजह से होता है। लिहाजा जिंदगी के हर मैदान में कामयाबी हासिल करने के लिए आप हर नमाज के बाद अव्वल 10 मरतबा दुरूद इब्राहिमी और उसके बाद 10 मरतबा सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह और 101 मरतबा इस्मे आज़म या कुद्दूस और 10 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह का विर्द करें और इस जिक्र को आप अपना मामूल बना लें। इंशाअल्लाह जल्द ही आपको जिंदगी के हर मैदान में कामयाबी हासिल होने लगेगी। वजीफा नंबर 22। अगर आप किसी मखसूस शख्स की मोहब्बत हासिल करना चाहते हैं तो इस मकसद के लिए सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह का विर्द करना बेहद अफजल है। सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह की बरकत से आप सिर्फ 7 दिन में ही किसी भी शख्स की मोहब्बत को हमेशा के लिए हासिल कर सकते हैं। लिहाजा किसी की मोहब्बत हासिल करने के लिए आप इशा की नमाज अदा करने के बाद सबसे पहले 10 मरतबा दुरूद इब्राहिमी विर्द करें। उसके बाद आप मुताल्लिका शख्स को ज़हन में रख कर 170 मरतबा सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह और 786 मरतबा इस्मे आज़म या कुद्दूस का मुकम्मल तवज्जो से विर्द करें और आखिर में आप दोबारा 10 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर ये अमल बंद कर दें और ये रूहानी अमल आप लगातार अपना मकसद हासिल होने तक जारी रखें। इंशाअल्लाह सिर्फ चंद घंटों या चंद दिन में आपको मुतल्लिका शख्स की मोहब्बत हासिल हो जाएगी। वजीफा नंबर 23। पैसा हर शख्स की जरूरत है लेकिन हर शख्स को मेहनत करने के बावजूद पैसा हासिल नहीं होता। ज्यादा पैसा जल्द हासिल करने के लिए आपको बरकत की जरूरत है और बरकत हासिल करने के लिए बेहतरीन दुआ सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह और इस्मे आज़म या कुद्दूस है। लिहाजा अगर आप ज्यादा पैसा जल्दी हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह का ये अमल अपना मकसद हासिल होने तक जारी रखें। इंशाअल्लाह इस रूहानी अमल की बरकत से जल्द आपको बेशुमार रिज़्क और दौलत हासिल होने लग जाएगी। इस रूहानी अमल के लिए आप इशा की नमाज अदा करने के बाद 10 मरतबा दुरूद इब्राहिमी विर्द करें और उसके बाद आप
1 मरतबा सूरह मुजम्मिल और 100 मरतबा सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह का विर्द करें और उसके बाद 786 मरतबा इस्मे आज़म या कुद्दूस पढ़ें और आखिर में आप 10 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर ये अमल जारी रखें। ये अमल आप अपना मकसद हासिल होने तक जारी रखें, यानी कि जब तक आपको आपकी मर्जी के मुताबिक बेशुमार रिज़्क और दौलत हासिल नहीं हो जाती, आप ये अमल जारी रखें। इंशाअल्लाह सिर्फ चंद दिन में ही आपको वाफिर पैसा हासिल होने लग जाएगा। वजीफा नंबर 24। आम तौर पर नजरेबद तोहम परस्ती पर मबनी अकीदा माना जाता है, लेकिन नजरेबद के वजूद और उसके नुकसानात के बारे में कुरान और अहादीस में वाज़ेह अहकामात मौजूद हैं, लिहाजा एक मुसलमान नजरेबद से इनकार नहीं कर सकता। आज की इस वीडियो में हम आपको नजरेबद की अलामात बताएंगे। नजरेबद से मुतासिर हर शख्स पर नजरेबद की मुख्तलिफ अलामात ज़ाहिर होती हैं। नजरेबद की अलामात का इन्हिसार फर्द की उम्र और जेंडर पर होता है। इसके अलावा जब नजरेबद दायमी हो जाती है तो उसकी अलामात मजीद पेचीदा हो जाती हैं। दायमी नजरेबद की अलामात की बिना पर पहचान करना मुश्किल होता है, लिहाजा आज की इस वीडियो में हम बच्चों, बड़ों, औरतों और घर पर नजरेबद की सूरत में ज़ाहिर होने वाली अलामात बताएंगे। याद रहे कि नजरेबद से बचना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये फर्द को हर किस्म का नुकसान दे सकती है। नजरेबद की पहचान एक आम शख्स सिर्फ अलामात को ही मद्देनजर रखकर कर सकता है, लिहाजा नजरेबद की अलामात दर्ज झैल हो सकती हैं। सबसे पहले हम आपको बच्चों पर लगने वाली नजरेबद की अलामात के बारे में बताएंगे। नजरेबद सबसे ज्यादा बच्चों को मुतासिर करती है और बच्चे इंसानों से ज्यादा जिन्नात की नजरेबद का शिकार होते हैं। जिन्नात की नजरेबद हदीस से साबित है। नजरेबद की वजह से बच्चों पर मदरजा झैल 7 अलामात जाहिर हो सकती हैं। नजरेबद की वजह से बच्चे बिला वजह रोते हैं। नजरेबद की वजह से बच्चे सही से सो नहीं पाते। नजरेबद की वजह से बच्चों की भूख में कमी आ जाती है। नजरेबद की वजह से बच्चों को बुखार हो सकता है। नजरेबद बच्चों की कै और असहाल की वजह बन सकती है। नजरेबद बच्चों में बेचैनी पैदा करती है। नजरेबद की वजह से बच्चे शदीद जिद करने लगते हैं। अब आते हैं बड़ों को लगने वाली नजरेबद की अलामात की तरफ। शादीशुदा अफराद खास तौर पर शोहर पर नजरेबद का असर बहुत जल्दी हो जाता है। इसके अलावा हामला खवातीन और कुंवारी लड़कियां भी आसानी से नजरेबद का शिकार हो जाती हैं। नजरेबद बदकिस्मत जिंदगी की वजह बनती है, लिहाजा नजरेबद की वजह से बड़ों पर 10 अलामात जाहिर हो सकती हैं। नजरेबद की वजह से किसी काम में अचानक रुकावट आ सकती है। नौकरी और कारोबार में अचानक नुकसान हो सकता है। फर्द को अचानक हादसा का सामना हो सकता है। फर्द को अचानक सर या फिर जिस्म में दर्द हो सकता है। नजरेबद की वजह से फर्द को शदीद गुस्सा महसूस होता है। फर्द के बाजू में दर्द हो सकता है। नजरेबद की वजह से फर्द अफसुर्दा और बेचैन रह सकता है। नजरेबद की वजह से फर्द को रात में खौफ महसूस हो सकता है। नजरेबद की वजह से फर्द की भूख और नींद में कमी आ सकती है। नजरेबद की वजह से मुसलसल हादसा होना दायमी नजरेबद की वजह हो सकती है। नजरेबद की वजह से फर्द के दोस्तों और अजीजों से ताल्लुकात खराब हो सकते हैं। नजरेबद रिश्ता और शादी में रुकावट की वजह बनती है। नजरेबद मियाँ बीवी में गलत फहमी और नफरत पैदा करती है। नजरेबद दायमी बीमारी भी लाहक कर सकती है। अब आते हैं खवातीन को लगने वाली नजरेबद की तरफ। बच्चों के बाद नजरेबद का सबसे ज्यादा असर खवातीन पर होता है। नजरेबद की वजह से खवातीन पर मदरजा झैल 10 अलामात जाहिर हो सकती हैं। नजरेबद खवातीन में सरदर्द और दर्द शकीका लाहक कर सकती है। नजरेबद की वजह से खवातीन को उल्टी और कै हो सकती है। नजरेबद खवातीन में माहवारी की खराबी पैदा करती है। अगर कोई खातून बेऔलाद
اولاد ہے تو یہ دائمی نظر بد کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ نظر بد کی وجہ سے کسی خاتون کا فیملی کے افراد سے اچھے تعلقات نہیں رہتے۔ نظر بد کی وجہ سے میاں بیوی کی محبت نفرت میں بدل جاتی ہے۔ نظر بد خواتین کو پرسکون نیند سے محروم کر سکتی ہے۔ نظر بد کی وجہ سے خواتین کا حمل ضائع ہو سکتا ہے۔ نظر بد خواتین میں بے چینی اور ڈپریشن پیدا کر سکتی ہے۔ نظر بد خواتین کو بھیانک نقصانات سے دوچار کر سکتی ہے۔ لہٰذا اگر بیان کی گئی علامات میں سے 5 علامات آپ میں موجود ہیں تو مطلب آپ نظر بد کا شکار ہو چکے ہیں۔ لہٰذا جلد نظر بد سے نجات کے لیے آپ نظر بد کی دعا کا ورد کریں۔ اب آتے ہیں شادی کو نظر بد لگنے کی علامات کی طرف۔ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی میں رکاوٹ کی وجہ نظر بد ہو سکتی ہے۔ نظر بد کی وجہ سے رشتہ پکا نہیں ہوتا۔ اگر رشتہ ہو بھی جائے تو شادی نہیں ہوتی۔ اگر شادی ہو جائے تو اس شادی کے ناکام ہونے کا شدید اندیشہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی لڑکی یا لڑکے کے رشتہ میں نظر بد کی وجہ سے رکاوٹ ہے تو اس کی وجہ سے 8 علامات ظاہر ہو سکتی ہیں جو کہ درج ذیل ہیں۔ نظر بد کی وجہ سے فرد کو رات کے وقت شدید بے چینی کا سامنا ہوتا ہے۔ ذہن میں فضول قسم کے خیالات آتے ہیں جس کی وجہ سے فرد کو نیند نہیں آتی۔ فرد کے پیٹ یا بازو میں درد ہوتا ہے۔ فرد کو گھبراہٹ محسوس ہو سکتی ہے۔ نظر بد کی وجہ سے فرد کو خوف محسوس ہو سکتا ہے۔ نظر بد کی وجہ سے فرد کو اچانک شدید غصہ آ سکتا ہے۔ نظر بد غلط فہمی پیدا کرتی ہے جس کی وجہ سے رشتہ ٹوٹ سکتا ہے۔ نظر بد کا شکار فرد جب بستر پر لیٹتا ہے تو اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ بیان کی گئی علامات میں سے اگر آپ میں 3 علامات موجود ہیں تو مطلب آپ نظر بد کا شکار ہیں اور اس نظر بد کی وجہ سے آپ کی شادی اور رشتہ میں بے حد رکاوٹ آ سکتی ہے۔ اب آتے ہیں گھر کو نظر بد لگنے کی علامات کی طرف۔ کسی بھی فرد کا گھر نظر بد کا شکار ہو سکتا ہے اور اگر کسی گھر میں نظر بد کے اثرات ہیں تو اس وجہ سے گھر کے تمام افراد پر نظر بد کے اثرات ہو سکتے ہیں۔ گھر میں نظر بد کی وجہ سے فیملی کو شدید نقصانات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا گھر کا نظر بد سے صاف ہونا بے حد ضروری ہے۔ گھر پر نظر بد کی وجہ سے گھر پر مندرجہ ذیل 7 علامات ظاہر ہو سکتی ہیں۔ گھر کے افراد کے درمیان اتفاق اور محبت ختم ہو جاتی ہے۔ گھر میں شدید لڑائی جھگڑا رہنے لگتا ہے۔ گھر کے افراد ذہنی دباؤ کا شکار رہنے لگتے ہیں۔ گھر کے افراد کندھوں اور سر پر وزن محسوس کرتے ہیں۔ گھر کے افراد کو سونے میں دشواری ہوتی ہے۔ گھر کے افراد کو بھیانک خواب دکھائی دینے لگتے ہیں۔ گھر کے افراد اور گھر کے جانوروں کے رویے میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ گھر کے افراد کو مالی مشکلات اور غیر متوقع نقصانات کا سامنا ہوتا ہے۔ نظر بد کی وجہ سے گھر کے افراد کو غیر واضح شور سنائی دیتا ہے۔ نظر بد دائمی کی وجہ سے گھر کے افراد کو گھر میں کسی اور کے موجود ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ بیان کی گئی 10 علامات میں سے اگر 5 علامات آپ کے گھر میں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے گھر پر نظر بد کے شدید اثرات موجود ہیں۔ اگر کوئی بھائی یا بہن بار بار نظر بد کا شکار ہو جاتے ہیں تو یہ دائمی نظر بد ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے فرد کو مستقبل میں بھیانک نقصانات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ایسی صورتحال میں آپ ہم سے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح اور اسم اعظم یا قدوس اور سورہ ناس کے نقش منگوا کر گلے میں بھی پہنے اور اپنے گھر میں بھی رکھیں۔ انشاءاللہ جلد ہی آپ کو نظر بد سے شفا اور حفاظت حاصل ہو جائے گی۔ نقش سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح اور اسم اعظم یا قدوس اور سورہ ناس کا نقش نظر بد کا بے حد پاورفل علاج اور حفاظت ہے۔ لہٰذا آپ نظر بد کا شکار ہیں یا پھر نہیں، نقش سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح اپنے گھر میں ضرور رکھ لیں تاکہ آپ کی جان، اولاد، عزت، گھر، کاروبار
और सेहत, नजर बद से महफूज रहें। वजीफा नंबर 25, गम, उदासी और नाउमीदी का मुसलसल एहसास डिप्रेशन है। डिप्रेशन एक आम ज़हनी मर्ज है जो दुनिया भर में हर उम्र के अफराद को मुतासिर कर सकता है। मर्दों की निस्बत खवातीन को डिप्रेशन का मर्ज लाहक ज्यादा होता है। डिप्रेशन ज़हनी मर्ज है जो हल्का और शदीद हो सकता है। डिप्रेशन का इलाज मुमकिन है लेकिन आसान नहीं है। डिप्रेशन फर्द की रोजमर्रा की जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर करता है। डिप्रेशन का मरीज हंसने और लुत्फ अंदोज होने से महरूम हो जाता है, जिसकी वजह से उसे जिंदगी बेमायनी महसूस होने लगती है। डिप्रेशन को हसास लोगों का मर्ज माना जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको डिप्रेशन से निजात की दुआ बताएंगे, जिसकी बरकत से आप सिर्फ चंद दिनों में डिप्रेशन से निजात हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा इसी वीडियो में हम आपको डिप्रेशन की सही वजूहात और सही अलामात भी बताएंगे, लिहाजा आप इस वीडियो को आखिर तक देखें। सबसे पहले हम जानते हैं कि डिप्रेशन की अलामात क्या हैं। डिप्रेशन की पहचान डिप्रेशन की अलामात से ही हो सकती है, जबकि डिप्रेशन की अलामात हर शख्स में मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद डिप्रेशन की 9 अलामात ऐसी हैं जो कि डिप्रेशन के हर मरीज में पाई जाती हैं। ये 9 अलामात दर्जैल हो सकती हैं: बहुत ज्यादा गम महसूस करना, नाउमीदी और मायूसी में रहना, हौसला अफजाई की कमी, ज़हनी थकावट, दिलचस्पी की कमी, नींद की खराबी, खाने की खराबी, जिस्मानी दर्द और खुदकुशी के ख्यालात। बयान की गई 8 अलामात अगर आप में हैं तो आप कम या ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, लिहाजा आपको अपनी ग़िज़ा और नींद को बेहतर करने की जरूरत है। अगर बयान की गई अलामात के साथ आपको खौफ महसूस हो रहा है और जहन में बार बार एक ही ख्याल गर्दिश करता हो तो ये अलामात नजर बद की हो सकती हैं। लिहाजा ऐसी सूरत हाल में आप डिप्रेशन की दुआ का विर्द करेंगे तो आपको डिप्रेशन से निजात मिल जाएगी। अब आते हैं डिप्रेशन होने की वजूहात की तरफ। माहिरीन के मुताबिक डिप्रेशन की वजह माहौलियाती, जिनयाती और नफ्सियाती अवामिल हो सकते हैं। मेडिकल साइंस के मुताबिक इंसानी दिमाग में 2 खास किस्म के केमिकल सेरोटोनिन और नोरेपिनेफ्रिन पाए जाते हैं। ये केमिकल इंसानी मूड, जज्बात और नींद को कंट्रोल करते हैं। अगर किसी वजह से इन केमिकल्स की सतह में कमी वाक़या हो जाए तो इसकी वजह से फर्द को डिप्रेशन का मर्ज लाहक हो सकता है, लेकिन रूहानी माहिरीन के मुताबिक 70% अफराद को नजर बद की वजह से डिप्रेशन लाहक होता है। डिप्रेशन का बेहतरीन इलाज रूहानियत में ही है। ये रूहानी इलाज डिप्रेशन की दुआ है, जिसकी बरकत से आप सिर्फ चंद दिनों में डिप्रेशन से मुकम्मल निजात हासिल कर सकते हैं। रूहानी माहिरीन के मुताबिक डिप्रेशन कोई मर्ज नहीं है, बल्कि ये नजर बद की अलामत है। हमारी अकल चूंकि नजर बद को तस्लीम नहीं करती, इसलिए हम नजर बद का इलाज नहीं करते और नजर बद का इलाज ना करने की वजह से हम डिप्रेशन से मुकम्मल निजात हासिल नहीं कर पाते। लिहाजा अगर नजर बद का सही इलाज कर दिया जाए तो डिप्रेशन खुद ब खुद दूर हो जाता है। डिप्रेशन का बेहतरीन रूहानी इलाज डिप्रेशन की दुआ सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह का विर्द है। डिप्रेशन का रूहानी इलाज के लिए आप इशा की नमाज के बाद सबसे पहले ताज़ा वजू करें। उसके बाद आप 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी और फिर आप 100 मरतबा या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस और 41 मरतबा सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह का विर्द करें और उसके बाद आप 786 मरतबा या कुद्दूस पढ़ें और आखिर में आप फिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर ये अमल बंद कर दें। ये अमल आपने 14 दिन तक करना है। इंशाअल्लाह 14 दिनों में ही आपको डिप्रेशन से निजात मिल जाएगी। ये रूहानी अमल बेचैनी, घबराहट और खौफ से आपको सिर्फ 3 दिन में निजात दे देगा। डिप्रेशन का मर्ज मरीज पर बार बार हमला कर सकता है, लिहाजा बेहतर ये है कि आप रोजाना 10 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, 10 मरतबा या
या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस और 10 मरतबा सुबूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह का विर्द करते रहें ताकि आप पर डिप्रेशन का हमला कम से कम हो। या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, जिस दुआ के बारे में हमने आपको पहले बता दिया है। और यही दुआ हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर परेशानी में पढ़ते थे। लिहाजा डिप्रेशन के दौरान या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस लातादाद पढ़ते रहें तो डिप्रेशन में कमी आती है और फर्द सुकून महसूस करता है। डिप्रेशन की बहुत सी अकसाम हैं और इस दुआ मुबारक को हर किस्म के डिप्रेशन के दौरान पढ़ने से डिप्रेशन में कमी आती है। वजीफा नंबर 26। शुगर एक ऐसा मर्ज है जिसमें हमारे खून के खुलिये शक्कर को जज्ब नहीं कर पाते। लिहाजा शक्कर खून में जज्ब न होने की वजह से खून में शक्कर की मिकदार काफी ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से फर्द को शुगर का मर्ज लाहक हो जाता है। खून में शक्कर की मिकदार ज्यादा होने की वजह से इंसुलिन की कमी है। लिहाजा हमारा लबलबा इंसुलिन नामी हार्मोन्स पैदा करता है। इंसुलिन खून में शक्कर को जज्ब करने का काम सरअंजाम देती है। अगर हमारा लबलबा कम इंसुलिन खारिज करे तो भी खून में शक्कर जज्ब नहीं होती, जिसकी वजह से फर्द को शुगर का मर्ज लाहक हो जाता है। शुगर एक लाइलाज मर्ज है जो कि गुर्दों की खराबी और बेशुमार अमराज का बायस बनता है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी कुरानी दुआ बता रहे हैं जिसकी बरकत से आप शुगर का बेहतरीन कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इस वीडियो में शुगर की सही अलामात और उसकी सही वजूहात भी हासिल होंगी। अगर आप शुगर को तमाम जिंदगी के लिए कंट्रोल करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आपके लिए शिफा के राज मौजूद हैं। लिहाजा इस वीडियो को आप आखिर तक देखें। शुगर के नुकसानात क्या हैं? शुगर की बीमारी को कंट्रोल ना करने से मुतअद्दिद सेहत के मसाइल हो सकते हैं, बशमूल दिल की बीमारी, फालिज, गुर्दों की बीमारी, आंखों की बीमारी, आसाबी बीमारी, जिल्द की बीमारी। शुगर की 9 अलामात। अगर किसी फर्द को शुगर का मर्ज हो चुका है तो उस पर मदरजा झैल 9 अलामात जाहिर हो सकती हैं। बार बार पेशाब की हाजत, बेचैनी, बेख्वाबी, प्यास की ज्यादती, भूख की ज्यादती, वजन में कमी, थकावट, आंखों की बिनाई में कमी, जख्मों का देर से ठीक होना। याद रहे कि बाज़ औक़ात शुगर का मर्ज मरीज पर अपनी अलामात जाहिर नहीं करता। लिहाजा अगर किसी फर्द की उम्र 30 साल से ज्यादा है और वो शदीद भूख महसूस करता है तो उसे शुगर का टेस्ट जरूर करवा लेना चाहिए। सबसे पहले आते हैं हम शुगर होने की वजूहात की तरफ। रूहानियत के मुताबिक फर्द को दायमी नजरेबद, जादू, जिन्नात की वजह से शुगर लाहक होती है। असल में नजरेबद, जादू, जिन्नात की वजह से फर्द को परेशानी और बेख्वाबी का मर्ज लाहक होता है, जबकि मुसलसल परेशानी और बेख्वाबी फर्द को शुगर का मर्ज लाहक कर सकती है। लिहाजा नजरेबद, जादू, जिन्नात शुगर की वजह हो सकती है। मेडिकल साइंस के मुताबिक शुगर का मर्ज लाहक होने की दर्ज झैल वजूहात हो सकती हैं। अगर लबलबा इंसुलिन पैदा नहीं कर रहा तो फर्द को शुगर का मर्ज लाहक हो जाता है। वालिदैन को शुगर होने की वजह से उनके बच्चों को भी शुगर का मर्ज लाहक हो सकता है। उम्र ज्यादा होने से शुगर का खतरा भी बढ़ जाता है। शदीद ज़हनी दबाव और बेख्वाबी शुगर की वजह बन सकती है। शुगर के मरीज के परहेज क्या हैं? शुगर का मरीज बाजारी खाना, कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक, चावल, अल्कोहल, सिगरेट और शक्कर का इस्तेमाल हरगिज ना करें। एक दिन में कम से कम 5 लीटर पानी जरूर पिएं। रात को जल्दी सोने की आदत डालें। सलाद का इस्तेमाल ज्यादा करें। शुगर का मरीज सुबह 2 गिलास पानी में आधा लीमू डालकर पीने की आदत बनाएं। शुगर का मरीज सुबह और शाम को 45 मिनट तक वॉक जरूर करें। जब भी आप खाना खाएं तो उसके
15 मिनट बाद 5 मिनट चहलकदमी जरूर करें, और ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और खाना खाने के बाद सोने की कोशिश हरगिज ना करें। शुगर को कंट्रोल करने की बेहतरीन दुआ सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह का विर्द है। आज की इस वीडियो में हम आपको सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह और इस्मे आज़म या कुद्दूस के जरिए शुगर कंट्रोल करने का तरीका बताएंगे। सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह और इस्मे आज़म या कुद्दूस की बरकत से 15 मिनट में शुगर कंट्रोल की जा सकती है। अगर कोई मरीज सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह को हर नमाज के बाद 41 मरतबा और या कुद्दूस को 21 मरतबा रोजाना विर्द करता है तो वो लंबे अरसे तक के लिए शुगर को कंट्रोल में कर सकता है। लिहाजा शुगर को कंट्रोल में करने से पहले अपना टेस्ट जरूर करवा लें, और उसके बाद आप सुबह सूरज निकलने से पहले पुरसुकून जगह पर बैठकर नाक से सांस लेकर अपने सीने में रोक लें, और इसी हालत में आप 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें। उसके बाद आप सांस आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालें। ये अमल आपने 50 मरतबा दोहराना है। उसके बाद आप घर से बाहर चहलकदमी के लिए जाएं। आपने कम से कम 45 मिनट तक रोजाना चहलकदमी करनी है। ये अमल 3 दिन करने के बाद आप दोबारा अपना शुगर का टेस्ट करवाएं। इंशाअल्लाह आपको वाज़िया फर्क महसूस होगा। ये अमल आप लगातार जारी रखें। इंशाअल्लाह हर आने वाले दिन में आपकी शुगर में वाज़िया कमी आएगी। हमल के दौरान शुगर की दुआ। हमल के दौरान ज्यादातर खवातीन के खून में शक्कर की मिकदार ज्यादा हो जाती है। ऐसी सूरत में शुगर का टेस्ट पॉजिटिव आता है, लेकिन बच्चे की पैदाइश के चंद दिन बाद जब आप शुगर का टेस्ट दोबारा करवाएंगे तो वो टेस्ट बिल्कुल सही होगा, यानी कि हामिला के खून में शुगर नहीं होगी। लिहाजा हमल के दौरान होने वाली शुगर कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ऐसा हार्मोन्स के उतार चढ़ाव के बायस हो जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसी सूरत हाल से खौफजदा है तो वो फजर की नमाज के बाद 41 मरतबा सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह और 41 मरतबा इस्मे आज़म या कुद्दूस पढ़ लिया करे। इंशाअल्लाह हमल के दौरान होने वाली परेशानियों से आप महफूज रहेंगे। वजीफा नंबर 26। इंसानी जिस्म में खून की रफ्तार को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। एक आम इंसान के खून का बहाव 120 या उसके लगभग होना चाहिए। ब्लड प्रेशर अगर 80 से 120 से ज्यादा होगा तो ये हाई ब्लड प्रेशर है, और अगर इससे कम होगा तो ये लो ब्लड प्रेशर है। हाई ब्लड प्रेशर एक खामोश कातिल है जो अक्सर कोई अलामात जाहिर नहीं करता। ये दिल के दौरे, फालिज, गुर्दों की खराबी और दीगर सेहत की पेचीदगियों का खतरा बढ़ा सकता है। WHO के मुताबिक 2020 में पूरी दुनिया में 29% बालिग अफराद ब्लड प्रेशर का शिकार थे। इनमें से 462 मिलियन अफराद हाई ब्लड प्रेशर का शिकार थे। 2025 में ब्लड प्रेशर के मरीजों की तादाद 1.59 बिलियन तक होने का इम्कान है। ब्लड प्रेशर लाइलाज मर्ज है, लेकिन इसे कंट्रोल में किया जा सकता है। ब्लड प्रेशर मर्दों से ज्यादा खवातीन को मुतासिर करता है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी कुरानी दुआ बताएंगे जिसकी बरकत से आप ब्लड प्रेशर को बहुत जल्दी कंट्रोल कर पाएंगे। इसके अलावा इस वीडियो में हम आपको ब्लड प्रेशर की सही वजूहात, अलामात और नुकसानात के बारे में भी बताएंगे। लिहाजा अगर आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपके लिए शफा का सही तरीका मौजूद है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन दुआ सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह है। ये दुआ मुबारक हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए अपनी बरकत को फौरी जाहिर करती है। अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो तो ऐसी सूरत हाल में आप लातादाद सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह का विर्द करें। इंशाअल्लाह
कुछ देर में आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। ये अमल चंद दिन दोहराने से आपको ब्लड प्रेशर से सुकून मिलना शुरू हो जाएगा। ये अमल ऐसे अफराद के लिए मुजरब है जिनको अद्वियात लेने के बावजूद भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आ रहा। याद रहे कि सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह की बरकत से हाई ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से मरीज को लगने वाली बीमारी को कंट्रोल करती है। याद रहे कि ब्लड प्रेशर को सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है, इसका हतमी इलाज मौजूद नहीं है। सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह की बरकत से आप लंबे अरसे तक ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर की वजूहात। रूहानियत में ब्लड प्रेशर की वजह नजरेबद और मनफी तवानाई को माना जाता है। चूंकि ये बात गैर अकली है, इसलिए ज्यादातर लोग इस बात को तस्लीम नहीं करते, लेकिन ये सच है। जब कोई फर्द नजरेबद और मनफी तवानाई का शिकार होता है तो उस वक्त उसका ब्लड प्रेशर कम या ज्यादा होगा। यानी ब्लड प्रेशर बालिग अफराद में नजरेबद और मनफी तवानाई की अलामत है। एक आम इंसान के लिए नजरेबद और मनफी तवानाई की पहचान अलामात के जरिए कर सकता है। मेडिकल साइंस के मुताबिक हाई ब्लड प्रेशर की मदरजा झैल वजूहात हो सकती हैं। 30 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को हाई ब्लड प्रेशर होने का ज्यादा खतरा है। ब्लड प्रेशर का मर्ज वालिदैन से औलाद में मुंतकिल हो सकता है। मोटापा फर्द को हाई ब्लड प्रेशर के मर्ज में मुबतला करता है। नमक, बाजारी खाना, चावल, कोल्ड ड्रिंक और अल्कोहल और सिगरेट का इस्तेमाल फर्द को हाई ब्लड प्रेशर लाक करता है। शुगर ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है। याद रहे कि ब्लड प्रेशर की वजह रूहानी हो या ज़ाहिरी, दोनों सूरतों में इसको कंट्रोल करना जरूरी है। लिहाजा आप डॉक्टर से राब्ता जरूर करें। इसके अलावा आप हाई ब्लड प्रेशर के दौरान सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह को विर्द जरूर करें ताकि आपको जल्द हाई ब्लड प्रेशर से निजात हासिल हो सके। बाज़ औक़ात हाई ब्लड प्रेशर किसी मरीज पर अपनी अलामात जाहिर नहीं करता, जो कि खतरनाक हो सकता है। लिहाजा ब्लड प्रेशर के मरीज को ब्लड प्रेशर की दवा तमाम जिंदगी इस्तेमाल करना पड़ती है। हाई ब्लड प्रेशर की आम अलामात दर्ज झैल हो सकती हैं। सर दर्द, चक्कर आना, तेज सांस लेने, चेहरे, गर्दन या सीने में दर्द, कै और बेहोशी। अगर आपको इनमें से कोई अलामत महसूस हो तो उसी वक्त आप सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह का विर्द करें। इसके अलावा आप डॉक्टर से भी राब्ता करें ताकि डॉक्टर आपको पेशाब आवर अद्वियात देकर आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर सके। हाई ब्लड प्रेशर मरीज के लिए भयानक नुकसानात की वजह बन सकता है। लिहाजा हाई ब्लड प्रेशर को नजरअंदाज करने की बजाय आप डॉक्टर से राब्ता करके मुनासिब दवा लें। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से मरीज को अपनी जिंदगी में 11 नुकसानात का सामना हो सकता है। ये नुकसानात दर्ज झैल हो सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से मरीज के गुर्दे फेल हो सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से मरीज को हार्ट अटैक आ सकता है। हाई ब्लड प्रेशर फालिज की वजह बन सकता है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से मरीज को खौफ की बीमारी लाक हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से मरीज को शुगर और कोलेस्ट्रॉल की बीमारी लाक हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से मरीज को डिप्रेशन और बेचैनी लाक हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से फर्द को सोने के दौरान शदीद घबराहट हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से मरीज की याददाश्त खराब हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से मरीज की नजर कमजोर हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से मरीज को मैदा और जिगर की बीमारियां लाक हो सकती हैं। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हैं तो पहले बयान किए गए नुकसानात का
आपको सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप डॉक्टर से राब्ता करके हाई ब्लड प्रेशर की दवा लें और इस दवा को डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक तमाम जिंदगी जारी रखें। और इसके साथ साथ आप हाई ब्लड प्रेशर की दुआ सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर रूह भी पढ़ते रहें ताकि आपकी दवा में कमी आ सके। याद रहे कि अगर आप ब्लड प्रेशर का शिकार हो चुके हैं तो ये मर्ज तमाम जिंदगी आपके साथ रहेगा। ब्लड प्रेशर की वजह से आपको शुगर, कोलेस्ट्रॉल और दिल के अमराज लाक हो सकते हैं। लिहाजा आपको अपनी तर्ज जिंदगी को बेहतर बनाने की जरूरत है। आगे मौजूद 11 नुकात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें ताकि आप हाई ब्लड प्रेशर के नुकसानात से महफूज रह सकें। बाजारी खाना और कोल्ड ड्रिंक और अल्कोहल छोड़ दें। सिगरेट से दूर रहें। रोजाना कम से कम 5 लीटर पानी पिएं। सुबह और शाम 1 घंटा वॉक जरूर करें। रात में जल्दी सोने की आदत डालें। सुबह उठकर 10 मरतबा दुरूद इब्राहिमी और 10 मरतबा सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर रूह को विर्द करने की आदत डालें। ज्यादा घी या ऑयल वाले खाने ना खाएं। सलाद का इस्तेमाल ज्यादा करें। नमक का इस्तेमाल हरगिज ना करें। दिन में 1 बार नींबू पानी का इस्तेमाल लाजमी करें। चीनी का इस्तेमाल कम से कम करें। वजीफा नंबर 27। काला जादू बीमारी की तरह इंसान के जिस्म, ख्वाहिशात और जज्बात पर अपनी अलामात जाहिर करता है। लिहाजा अगर आप काला जादू का शिकार हैं तो इसकी वजह से आपके जिस्म, जज्बात और ख्वाहिशात में मदरजा झैल 10 अलामात जाहिर हो सकती हैं। काला जादू की तस्दीक अलामात के जरिए भी की जाती है। लिहाजा अगर आप काला जादू का शिकार हैं तो उसकी वजह से आप पर मदरजा झैल 10 अलामात जाहिर हो सकती हैं। काला जादू की वजह से आपके दिल में ये शक पैदा हो सकता है कि काला जादू सिर्फ बकवास है। काला जादू की वजह से आप में शदीद गुस्सा और जिद पैदा हो सकती है। काला जादू की वजह से आपको सर दर्द और कमर दर्द का मसला लाहक होगा। काला जादू आप में फजूल खर्ची की आदत भी पैदा कर सकता है। काला जादू की वजह से आपको चापलूसी बहुत अच्छी लगने लगेगी। काला जादू की वजह से आप डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर और कमर दर्द की बीमारी का शिकार भी हो सकते हैं। आपने जो काम हिस्सेदारी की बुनियाद पर किए होंगे उनमें आपको नुकसान होने लगेगा। काला जादू की वजह से आप खुदनुमाई की आदत में मुब्तला हो सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो काला जादू मियाँ बीवी के दरमियान इख्तलाफात पैदा करेगा। गैर फर्माबरदार दोस्तों को आप अपना दुश्मन महसूस करेंगे। काला जादू आपके दिल में इंतकाम लेने की शिद्दत पैदा कर देगा। काला जादू की वजह से आपको आपके दोस्तों की तरफ से परेशानी हासिल होने लगेगी। कुछ लोग आपकी गीबत और मुखालफत करने लगेंगे। बयान की गई अलामात में से अगर आप में 8 अलामात मौजूद हैं तो इसका मतलब आप कम या ज्यादा काला जादू का शिकार हैं। काला जादू का इलाज के लिए आप हर फर्ज नमाज के बाद 1 बार आयतुल कुर्सी और 70 मरतबा सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर रूह पढ़ लें। इंशाअल्लाह जब आपको आयतुल कुर्सी और सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर रूह विर्द करने की आदत हो जाएगी तो आपको जादू से भी निजात मिल जाएगी और आप आइंदा जिंदगी हर किस्म के जादू, जिन्नात, दुश्मन और शैतान से भी महफूज रहेंगे। इसके अलावा काला जादू से निजात और हिफाजत के लिए दूसरा मुजर्रब अमल नक्श सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर रूह है। वजीफा नंबर 28। हमने आपको सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर रूह के बहुत से वज़ाइफ बताए हैं। अब हम आपको एक ऐसा वजीफा बताने जा रहे हैं जिसके करने से आपको अलग अलग वज़ाइफ करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस एक वजीफा के करने से आपके
तमाम रूहानी मसाइल हल हो जाएंगे। वजीफा के लिए आप रोजाना इशा की नमाज अदा करने के बाद तमाम कामों से फ्री होकर 10 मरतबा दुरूद इब्राहिमी और कम अज कम 100 बार या हय्यू या कय्यूम बिरहमती का अस्तगीस और 313 मरतबा सुबूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह को मोहब्बत से विर्द करने की आदत डाल लें। और इसमें आपने बिला मजबूरी नागा नहीं करना। अगर आप वजीफा करने के बाद इस दुआ को पाबंदी से विर्द करने की आदत डाल लेते हैं तो इसके बाद आपको इस दुआ की मदरजा झैल रूहानी बरकत हासिल होंगी और हमेशा हासिल होती रहेंगी। नंबर 1, आपकी हर हाजत गैब से पूरी होगी। आपको खैर बरकत हासिल होने लगेंगी। आपकी तकदीर अच्छी हो जाएगी और आपको बुरी तकदीर से हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। मियाँ बीवी में हद से ज्यादा मोहब्बत पैदा हो जाएगी। बेटी को उसकी पसंद का रिश्ता मिल जाएगा। पसंद की शादी की हर रुकावट दूर हो जाएगी। बेघरों को घर मिल जाएगा। कारोबार तरक्की कर जाएगा। आपको पसंद की जॉब हासिल हो जाएगी। आपको हमेशा तरक्की और कामयाबी हासिल होने लगेगी। बे औलाद साहिब औलाद हो जाएंगे। गुस्ताख औलाद सुधर जाएगी। बीवी को ससुराल में इज्जत हासिल होगी। सास का दिल आपके लिए नरम हो जाएगा। आपको आसानी से बेहिसाब रिज़्क हासिल होगा। आपको पैसा और इज्जत हासिल होने लगेगी। आपके दुश्मन आपसे दूर हो जाएंगे। आप हादसा और हर किस्म के नुकसान से हमेशा महफूज रहेंगे। आप पर नजरे बद और काला जादू असर नहीं करेगा। आपके घर में खैर बरकत होने लगेगी। आपके जिस्म और घर से बद असरात दूर हो जाएंगे। वजीफा नंबर 29, बरकत अरबी जबान का लफ्ज है जिसके मैनी इलाही नेमत के हैं। ये लफ्ज कुरान पाक में 32 मरतबा आया है। बरकत खुदा की तरफ से एक तोहफा या फिर एक नेमत है जो कि कमाया या खरीदा नहीं जा सकता, बल्कि ये अल्लाह की अता है जो कि अल्लाह पाक की मेहरबानी और मोहब्बत की अलामत है। आज की इस वीडियो में हम आपको रूहानी हवाले से आपको बरकत की हकीकत और बरकत को हासिल करने की दुआ बताएंगे। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि बरकत की महरूमी से फर्द को जिंदगी में कैसे नुकसानात का सामना होता है। बरकत एक नेमत है जो कि हर इंसान को पैदाइश के वक्त हासिल होती है। बरकत की वजह से एक बच्चे को उसके वालिदैन की मोहब्बत और रिज़्क हासिल होता है। इसके अलावा बरकत की वजह से ही कोई दुनिया की परेशानियों और बीमारियों से महफूज रहता है। लेकिन जैसे जैसे किसी बच्चे की उम्र ज्यादा होती है उसमें कुछ ऐसी आदत पैदा हो जाती हैं जिसकी वजह से वो बरकत से महरूम होना शुरू हो जाता है। जब कोई शख्स खैर व बरकत से महरूम हो जाता है तो वो जिंदगी की भयानक परेशानियों का शिकार जरूर हो जाता है। असल में हमारी जिंदगी में चारों तरफ परेशानियां, बीमारियां, खौफ, नाकामी और शैतान मौजूद हैं, जबकि बरकत की वजह से इंसान इनसे महफूज रहता है। लेकिन जैसे ही कोई शख्स बरकत से महरूम होता है तो हमारी चारों तरफ मौजूद परेशानियां हमें घेर लेती हैं जिससे हम बच नहीं पाते। जिस तरह अंधेरे कमरे में अगर कोई मोमबत्ती लेकर खड़ा हो तो अंधेरा उससे दूर रहता है, लेकिन अगर मोमबत्ती बुझ जाए तो उसी वक्त उस शख्स को चारों तरफ से अंधेरा घेर लेता है। इस मिसाल में खैर व बरकत मोमबत्ती है और अंधेरा दुनिया की परेशानियां हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको खैर व बरकत खत्म होने की वजह, खैर व बरकत की महरूमी के असबाब और खैर व बरकत की महरूमी की वजह से होने वाले दुनियावी नुकसानात के बारे में बताएंगे। इसके अलावा इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी दुआ बताएंगे जिसकी वजह से आपको खैर व बरकत दोबारा हासिल होने लगेगी, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में दोबारा से खुशहाली
और सुकून आने लगेगा। लिहाजा अगर आप अपनी जिंदगी में खुशहाली, कामयाबी और दौलत चाहते हैं तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखें। बरक़ात की महरूमी की वजह से किसी फर्द को जिंदगी में बेशुमार परेशानियों का सामना करना पड़ता है और ऐसी परेशानियां कोशिश और मेहनत से दूर नहीं होती, बल्कि इन परेशानियों को दूर करने के लिए आपको दोबारा से बरक़ात को हासिल करना ही होगा। इस वीडियो में हम आपको खैर व बरकत की महरूमी की वजह से होने वाले दुनियावी नुकसानात के बारे में बताएंगे। खैर व बरकत की महरूमी की वजह से किसी फर्द को मदरजा झैल परेशानियों का सामना हो सकता है। रिज़्क़ की परेशानी, कारोबार में रुकावट, लाइलाज बीमारी का लाहक होना, शादी और रिश्ता में रुकावट, घर में फितना और फसाद होना, लोगों का मुखालफत करना, हादसा होना, नजरेबद और काला जादू का शिकार हो जाना, शोहर की नफरत, बेसकूनी और बेचैनी होना। जब कोई शख्स खैर व बरकत से महरूम हो जाता है तो इसकी वजह से सबसे पहले उसे रिज़्क़ की तंगी का सामना होता है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फर्द कर्ज, गुर्बत और घरेलू परेशानी का शिकार होने लगता है। वक्त गुजरने के साथ साथ फर्द के रिज़्क़ के हवाले से परेशानियों में इजाफा होता रहता है। खैर व बरकत की महरूमी की वजह से फर्द की जॉब खत्म हो सकती है। खैर व बरकत की महरूमी की वजह से फर्द को बेचैनी, डिप्रेशन और कोई भी लाइलाज बीमारी लाहक हो सकती है। खैर व बरकत से महरूम अफराद हमेशा परेशानी का शिकार रहते हैं। खैर व बरकत से महरूमी की वजह से फर्द की जिंदगी में बेशुमार रुकावटें आती हैं, जिसकी वजह से फर्द को शादी, रिश्ता, कारोबार और जिंदगी के हर मैदान में नाकामी मिलती है। खैर व बरकत की महरूमी घर में बेसकूनी लाती है, जिसकी वजह से घर में फितना और फसाद बरपा रहता है। खैर व बरकत की महरूमी की वजह से घर में पैसा नहीं रुकता। खैर व बरकत की महरूमी मोहब्बत को नफरत में तब्दील कर देती है, जिसकी वजह से मियाँ बीवी, औलाद और वालिदैन और बहन भाइयों में हमेशा इख्तलाफ रहता है। खैर व बरकत की महरूमी की वजह से आम अफराद भी आपसे बदतमीजी कर सकते हैं। खैर व बरकत से महरूम अफराद पर दुश्मन बहुत जल्दी गालिब आ जाते हैं। खैर व बरकत से महरूम अफराद रूहानी हिफाजत से महरूम हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऐसे अफराद नजरेबद और काला जादू का शिकार बहुत जल्दी हो जाते हैं। हमने आपको खैर व बरकत से महरूमी की वजह से होने वाले मुमकिन नुकसानात के बारे में बता दिया है, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि कैसे मालूम हो कि कोई शख्स खैर व बरकत से महरूम है या नहीं। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसी अलामात के बारे में बताते हैं जिनकी बिना पर आपको ये तस्दीक हो सकती है कि आप खैर व बरकत से महरूम हैं या नहीं। खैर व बरकत से महरूमी की अलामात क्या हैं? खैर व बरकत की महरूमी की वजह से मुख्तलिफ अफराद पर मुख्तलिफ अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं। ये अलामात हमने अपने ज़ाती मुशाहिदात की बिना पर तलाश की हैं। इन अलामात का तज़किरा किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा। लिहाजा खैर व बरकत से महरूम होने की सबसे बड़ी अलामत ये है कि फर्द को बुराई सर अंजाम देकर या बुराई देखकर लुत्फ महसूस होता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई फर्द जमीन पर गिर जाए तो उस शख्स को देखकर अगर कोई हंसता है तो इसका मतलब ये है कि ये शख्स खैर व बरकत से महरूम हो रहा है। इसी तरह किसी की गीबत सुनकर लुत्फ अंदोज होना, दो अफराद में झगड़ा करवा देना या झगड़ा देखकर खुश होना, शदीद बेचैनी होना। इस्लाम में हमें ऐसी बहुत सी वजूहात मिलती हैं जिनकी बिना पर कोई फर्द बरकत से महरूम हो जाता है। ये वजूहात दर्ज झैल हो सकती हैं। आजान के वक्त गाना सुनने या झगड़ा करने या बातें करने की वजह से भी फर्द खैर व बरकत से महरूम हो जाता है। नमाज अदा ना करने की वजह से फर्द बरकत से
महरूम हो जाता है। शराब पीने या शराब घर में लाने की वजह से भी फर्द बरकत से महरूम हो जाता है। जाने या अनजाने में अगर कोई शख्स सूद लेता है या फिर वो सूद देता है तो वो खैर बरकत से हमेशा के लिए महरूम हो जाता है। बात बात पर कसम खाना या झूठ बोलने से फर्द बरकत से महरूम हो जाता है। गाली देने की आदत फर्द को बरकत से महरूम करती है। बीवी अगर शोहर से बदतमीजी करे तो इसकी वजह से वो बरकत से महरूम हो जाती है। औलाद अगर अपने वालिदैन से बदतमीजी करती है तो उसकी वजह से वो जिंदगी की बरकत से महरूम हो जाती है। जो अफराद गुनाह करके इस्तिग़फ़ार नहीं करते वो भी खैर बरकत से महरूम हो जाते हैं। बड़े नाखून रखने की वजह से फर्द खैर बरकत से महरूम होता है। मगरिब के वक्त या मगरिब के बाद घर में झाड़ू देने से फर्द बरकत से महरूम हो जाता है। हमने बरकत से महरूम होने की सबसे अहम वजूहात आपको बताई हैं और खैर बरकत से महरूमी की वजह से होने वाले नुकसानात भी आपको बता दिए हैं। अब हम आपको एक ऐसी दुआ बताएंगे जिसकी बरकत से आपको जल्द ही खैर बरकत दोबारा हासिल हो जाएगी। खैर बरकत हासिल करने के लिए सबसे पहले आप अपने अमाल दुरुस्त करें और उन सभी वजूहात को जिंदगी से दूर करें जो कि खैर बरकत से महरूमी की वजह बनते हैं। उसके बाद आप खैर बरकत की दुआ का विर्द करें। इंशाअल्लाह आपको जल्द ही बरकत हासिल होने लगेंगी जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में जल्द ही खुशहाली आने लगेगी। याद रहेगा कुरान की हर आयत खैर बरकत है। अब हम आपको सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह और सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम के जरिए बरकत को हासिल करने के लिए एक अमल बताएंगे। याद रहे कि सूरह यासीन कुरान पाक की अजीम तरीन सूरह मुबारका में से एक है और सूरह यासीन की अजीम आयात में से सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम है। वजीफा के लिए सबसे पहले आप 3 मसाकीन को खाना खिलाएं या फिर हस्बे तौफीक सदका करें या फिर कोई भी मीठी चीज आप अल्लाह के रास्ते में बांट दें। उसके बाद आप इशा की नमाज अदा करने के बाद 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी और उसके बाद आप 300 मरतबा सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम और फिर 786 मरतबा सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह और आखिर में फिर 101 मरतबा इस्मे आजम या कुद्दूस विर्द करें और आखिर में फिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर ये अमल बंद कर दें। ये रूहानी अमल आपने इसी तरह 14 दिन तक जारी रखना है। 14 दिन के बाद आप दोबारा 3 मसाकीन को खाना खिलाएं। ये अमल मुकम्मल करने के बाद आप रोजाना 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी और 10 मरतबा सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम और 101 मरतबा सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह को विर्द करने की आदत डाल लें और इसमें आप बिला मजबूरी नागा ना करें। इंशाअल्लाह जल्द ही आपको खैर बरकत हासिल होने लगेगी। बरकत हासिल होने के बाद आपको जल्द बेहिसाब रिज्क, पैसा, खुशहाली, कामयाबी हासिल होने लगेगी। खैर बरकत की महरूमी की वजह से फर्द का कारोबार, घर, पैसा, शादी, रिश्ता और रिज्क बुरी तरह से मुतासिर हो सकते हैं। लिहाजा अब हम आपको चंद ऐसी दुआएं बता रहे हैं जिसकी वजह से आप रिज्क, पैसा, कारोबार, घर, शादी और रिश्ता के हवाले से खैर बरकत हासिल करके अपनी परेशानियों से निजात हासिल कर सकते हैं। कारोबार में खैर बरकत का अमल, कारोबार के मुकाम पर किसी हराम चीज का इस्तेमाल, कारोबार में झूठ का इस्तेमाल, कारोबार के लिए सूद पर पैसा लेना और कोई चीज बेचने के लिए कसम खाने की वजह से फर्द कारोबारी खैर बरकत से महरूम हो जाता है, जिसकी वजह से फर्द बेहद कोशिश और मेहनत के बावजूद अपने कारोबार को कामयाब नहीं कर पाता। लिहाजा कारोबार में बरकत हासिल करने के लिए आप हर जुम्मा को कम से कम
1 مسکین کو کھانا کھلائیں اور روزانہ 100 مرتبہ استغفراللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اور 41 مرتبہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح اور 101 مرتبہ اسم اعظم یا قدوس ورد کرنے کی عادت ڈال لیں۔ انشاءاللہ جلد ہی آپ کو برکات حاصل ہونے لگیں گی۔ رزق میں برکت کی دعا۔ جب انسان برکات سے محروم ہو جاتا ہے تو اس کا اثر سب سے پہلے اس انسان کے رزق پر پڑتا ہے، یعنی انسان رزق کی تنگی اور قرض کا شکار ہونے لگتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کو رزق حاصل ہونے کے حوالے سے شدید پریشانی حاصل ہونے لگتی ہے۔ اس کی وجہ کسی بھوکے کو کھانا نہ کھلانا، کسی بھیکاری کو پریشان کرنا، کتے کو مارنا، پرندوں کا گھونسلہ خراب کرنا، یتیم کو پریشان کرنا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ایسی صورتحال میں آپ روزانہ کسی بھی نماز کے بعد اول 11 مرتبہ درود ابراہیمی اور پھر 300 مرتبہ یا غفور یا رحیم اور 41 مرتبہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح اور 101 مرتبہ اسم اعظم یا قدوس اور آخر میں پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کو ورد کرنے کی عادت ڈالیں اور پرندوں کو دانہ ڈالنے کی بھی عادت آپ بنا لیں۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے جلد ہی آپ کو رزق کے حوالے سے ہر پریشانی سے نجات مل جائے گی۔ گھر میں خیر و برکت کے لیے جب کوئی انسان اپنے گھر میں برائی کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس گھر سے برکات ختم ہو جاتی ہے۔ گھر میں برائی کرنے سے مراد گھر میں شراب لانا، گھر میں شراب پینا، بیوی کو مارنا، شوہر سے بدتمیزی کرنا، گھر میں قرآن کی تلاوت نہ کرنا، صبح کے وقت گھر میں میوزک چلانا، شام کے وقت گھر میں جھاڑو دینا، گھر کے واش روم کی صفائی نہ کرنا، گھر سے بدبو آنا اور بھیکاری کو خیرات نہ دینا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے تو گھر میں رزق کی کمی بھی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ گھر میں ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی آتی رہتی ہے۔ لہٰذا ایسی صورتحال میں گھر کے واش روم صاف کریں، گھر سے بدبو دور کریں، اذان کے وقت ٹی وی اور موبائل بند کر دیا کریں، گھر میں قرآن پاک پڑھنے کی عادت ڈالیں اور اس کے علاوہ روزانہ آپ کسی بھی نماز کے بعد اول 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور اس کے بعد 100 مرتبہ انا فتحنا لک فتحا مبینا اور 41 مرتبہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح اور 101 مرتبہ اسم اعظم یا قدوس اور آخر میں پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کو ورد کرنے کی عادت ڈال لیں اور اس میں آپ بلا مجبوری ناغہ نہ کریں۔ انشاءاللہ جلد ہی آپ کے گھر میں خیر و برکت آنے لگے گی۔ زندگی میں برکت۔ انسان کی کچھ برائیاں ایسی ہیں جن کی وجہ سے ان کی زندگی خیر و برکت سے محروم ہو جاتی ہے، اور اگر کسی فرد کی زندگی سے خیر و برکت ختم ہو جائے تو مطلب ایسے شخص کو گھر، عزت، صحت، نوکری، رزق، پیسہ، اولاد اور کاروبار کی طرف سے شدید پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے، اور ایسی پریشانیاں موت تک فرد کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ یاد رہے کہ اگر زندگی سے خیر و برکت ختم ہو جائے تو ایسے افراد کو لا علاج بیماری ضرور لاحق ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ایسی صورتحال میں آپ اپنے اعمال کو درست کریں اور ہر نماز کے بعد اول 1 مرتبہ درود ابراہیمی اور 10 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اور 41 مرتبہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح اور 21 مرتبہ اسم اعظم یا قدوس اور آخر میں پھر 1 مرتبہ درود ابراہیمی ورد کرنے کی عادت ڈال لیں اور اس میں آپ بلا مجبوری ناغہ نہ کریں۔ انشاءاللہ جلد ہی آپ کی زندگی میں دوبارہ خیر و برکت آنے لگے گی۔ پیسے میں برکت۔ اگر آپ کے پاس پیسہ جمع نہیں ہو رہا تو ممکن ہے کہ آپ
पैसे की बरकत से महरूम है। इसकी वजह कंजूसी, पैसे से मोहब्बत और जरूरतमंद का एहसास ना करना हो सकता है। लिहाजा अगर आप पैसे की बरकत से महरूम हैं तो इस मकसद के लिए आप रोजाना किसी भी एक नमाज के बाद अव्वल 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और उसके बाद 300 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील और 101 मरतबा सुब्बून कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह और 41 मरतबा इसमें आजम या कुद्दूस को विर्द करने की आदत डाल ले। इंशाअल्लाह जल्द ही अल्लाह की जात आपको खैर बरकत अता फरमाएंगे, जिसकी वजह से आपको हर तरफ से पैसा हासिल होने लगेगा। शादी में बरकत। बाज अफराद खैर बरकत से महरूम होने की वजह से शादी और रिश्ता की रुकावटों का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से ना तो उनको बेहतर रिश्ता मिलता है और ना ही उनकी शादी की रुकावटें दूर होती हैं। और बाज ऐसे अफराद की शादी होने के बाद शादी खतरे में पड़ जाती है, लेकिन जिन अफराद को खैर बरकत हासिल होती है उनको शादी, रिश्ता और शादी को सलामत रखने के हवाले से किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं होता। अगर कोई भाई या बहन रिश्ता और शादी के हवाले से परेशानियों का शिकार हैं तो वो रोजाना किसी भी नमाज के बाद अव्वल 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी और 70 मरतबा आयतुल कुर्सी और 41 मरतबा सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह और 101 मरतबा इसमें आजम या कुद्दूस को विर्द करने की आदत डाल ले। इंशाअल्लाह सिर्फ चंद दिनों में अल्लाह की जात आपकी हर परेशानी को दूर फरमा देंगे। हमने खैर बरकत के हवाले से कमोबेश सभी तफसील आपको बता दी है, लेकिन अगर इसके बावजूद आपका कोई सवाल है तो आप हमसे राब्ता करके पूछ सकते हैं। वजीफा नंबर 30। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी कुरानी दुआ बता रहे हैं जिसकी वजह से आप नाफरमान और जिद्दी बच्चों को फर्माबरदार बना सकेंगे। ये दुआ इहदिनस सिरातल मुस्तकीम और सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह है। ये दुआ बच्चों की इस्लाह, ज़हानत, कामयाबी और रूहानी हिफाजत के लिए बेहतरीन मानी जाती है। याद रहे कि बच्चे बदतमीज और जिंदगी में नाकामी का शिकार जिन वजूहात की बिना पर होते हैं उन वजूहात को जानकर सही रूहानी तरीका इलाज इख्तियार करने से ही आपके बच्चों को फायदा होगा। बसूरत दीगर आप अपना वक्त बर्बाद करेंगे। लिहाजा बच्चों के जिद्दी और बदतमीज होने की असल वजह और उसका सबसे बेहतरीन इलाज आपको आज की इस वीडियो में हासिल होगा। लिहाजा आप इस वीडियो को आखिर तक देखें। बच्चों के बदतमीज होने की 4 वजूहात हो सकती हैं जो कि दर्ज झेल हैं। बुरा माहौल, मीडिया, वालिदैन का बच्चों को तवज्जो ना देना और नजरे बद। अगर कोई वालिदैन अपने बच्चों को बयान की गई 4 वजूहात से बचा लेते हैं तो उनके बच्चे जिद, बदतमीजी और बुरी आदत को छोड़ देते हैं। लेकिन अगर कोई वालिदैन बयान की गई 3 वजूहात को मद्देनजर नहीं रखते, ऐसे बच्चे वालिदैन से छुपकर बुरे काम करने लगते हैं और जब उन्हें बुरे कामों से रोका जाता है तो वो वालिदैन से बदतमीजी करने लगते हैं। बच्चों की ऐसी बदतमीजी और जिद को सिर्फ और सिर्फ दुआ के जरिए ही खत्म किया जा सकता है। बच्चों के बिगड़ने की एक वजह मीडिया असल में जदीद दौर की फिल्मों, ड्रामों और मुआशरे में फैलती हुई बुराइयों की खबर जब बच्चों के जहन में दाखिल होती है तो उनमें ऐसी बुराइयों को सरअंजाम देने का जुनून पैदा हो जाता है। लिहाजा जब कोई उन्हें बुराई करने से रोकता है तो अक्सर बच्चे
बदतमीजी पर उतर आते हैं। बाज ममालिक में बच्चों पर सख्त रवैया इख्तियार करने की कानून इजाजत नहीं देता, जिसकी वजह से बच्चे वालिदैन के डर के बगैर बुराई करने की आदत में मुब्तला हो जाते हैं। लिहाजा अक्सर वालिदैन के पास अपने बच्चों की सही इस्लाह करने के लिए कोई रास्ता भी नहीं होता। लेकिन इस्लाम में बहुत सी ऐसी दुआएं मौजूद हैं जिनकी बरकत से औलाद वालिदैन की फर्माबरदार भी हो जाती है और उन्हें जिंदगी के हर मैदान में कामयाबी भी मिलती है। बच्चों के बिगड़ने की दूसरी वजह वालिदैन का तवज्जो ना देना। बच्चों को पैदाइश से जवानी तक इस्लाह की जरूरत होती है, लेकिन बाज वालिदैन अपनी मोहब्बत की वजह से अपने बच्चों की सिर्फ ग़िज़ा और पसंद और नापसंद का ख्याल रखते हैं। ऐसे वालिदैन अपने बच्चों की बुरी हरकत को नजरअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से बच्चों की वो बुरी हरकत जो नजरअंदाज की गई होती है मजबूत हो जाती हैं। लिहाजा जब कोई बुरी आदत मजबूत हो जाती है तो उसको आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता और इस वजह से बच्चे वालिदैन से बदतमीजी और जिद भी कर सकती हैं। बच्चों के बिगड़ने की तीसरी वजह नजरेबद। बच्चों को जिद्दी और बदतमीज करने में नजरेबद का किरदार सबसे अहम होता है। नजरेबद की वजह से बच्चों को बेचैनी होने लगती है, लिहाजा वो अपनी बेचैनी दूर करने के लिए हर वो आदत अपनाते हैं जिनसे उन्हें लुत्फ मिलता है। लिहाजा नजरेबद का इलाज ना करने की वजह से बच्चों की बुरी हरकत, जिद और बदतमीजी में लगातार इजाफा होता रहता है, जिसकी वजह से वो अपने वालिदैन के गुस्ताख भी हो सकते हैं और जिंदगी में शदीद नुकसानात से भी दो चार हो सकते हैं। याद रहे कि जुराइम में मुब्तला अफराद बचपन में नजरेबद का शिकार ही होते हैं। अब आते हैं बेटियों की बदतमीजी की तरफ। बाज़ औक़ात बेटियां अपने वालिदैन से बदतमीजी करने लगती हैं, जिसकी वजह से वालिदैन को शदीद परेशानी लाहक हो जाती है, क्योंकि अगर बेटी गलत आदत को अपनाती है तो उसकी वजह से वालिदैन को सोसाइटी में बदनामी का सामना हो सकता है। बेटियों की गलत हरकत में बॉयफ्रेंड बनाना, घर से बगैर बताए दूर रहना, बगैर बताए शादी करना और सिगरेट की आदत शामिल हो सकती हैं। लिहाजा ऐसी सूरत हाल में भी वालिदैन सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह और इस्मे आज़म या कुद्दूस का रूहानी वजीफा करें। इस वजीफा के करने से बेटी जल्द ही वालिदैन की फरमाबरदार हो जाएगी। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम और सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह एक ऐसी दुआ है जिसकी वजह से आपके बच्चों को वो सभी बरकत हासिल होंगी जिनकी उन्हें जरूरत है। वजीफा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम और सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह की बरकत से आपके बच्चों को डर, जिद और बिलावजह की रोने की आदत से निजात मिल जाएगी। आपके बच्चे नजरेबद और जिन्नात से हमेशा महफूज रहेंगे। बच्चों की सेहत अच्छी हो जाएगी। बच्चे अपने वालिदैन के फरमाबरदार हो जाएंगे। बच्चे बुरी आदत से महफूज रहेंगे। बच्चों को बुरी महफिल और बुरे दोस्तों की सोहबत से नफरत हो जाएगी। बच्चे ज़हीन हो जाएंगे। बच्चों की अच्छी परवरिश होने लगेगी। बच्चों को अच्छे और बुरे में फर्क महसूस होने लगेगा। बच्चों का इखलाक बेहतरीन हो जाएगा। बच्चे हादसात से महफूज रहेंगे। बच्चों को कुव्वत मुदाफ़ियत हासिल होगी। बच्चों का दिमाग और आसाबी निज़ाम बेहतर हो जाएगा। बच्चों का IQ लेवल बढ़ने लगेगा। बच्चे अपने वालिदैन की हर बात मानने लगेंगे। इस वजीफा की बरकत से आप अपने बच्चों को हमेशा के लिए अपना फरमाबरदार बना सकते हैं। आपके बच्चे बालिग हैं या नाबालिग, दोनों सूरतों में ये दुआ आपके बच्चों के दिल और दिमाग पर असर करके उन्हें फरमाबरदार बनाएगी। इस दुआ को पढ़ने का तरीका ये है कि आप इशा या फजर की नमाज के बाद सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और उसके बाद आप
एक मरतबा सूरह फातिहा की तिलावत इस तरह करें कि जब आप सूरह फातिहा की आयत इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर पहुँचे तो आप इस आयत मुबारक को 100 मरतबा विर्द करें और फिर 41 मरतबा सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह को विर्द करें। उसके बाद आप सूरह फातिहा की बाकी आयत की तिलावत करें। उसके बाद आप दोबारा 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर ये अमल बंद कर दें। ये रूहानी अमल आपने सिर्फ 7 दिन तक करना है। इंशाअल्लाह 7 दिन में आपके तमाम बच्चे आपके फर्माबरदार होने लगेंगे। अगर कोई भाई या बहन ये अमल ना कर सकें तो वो ये दिन सिरातल मुस्तकीम और सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह का तावीज हमसे मंगवा कर अपने बच्चों के गले में जरूर पहना दें। इंशाअल्लाह इस तावीज की बरकत से आपके बच्चे हमेशा के लिए आपके फर्माबरदार हो जाएंगे और आपके बच्चे अल्लाह की हिफाजत में भी रहेंगे। अगर आपके बच्चे की उम्र 3 साल से कम है तो उसकी जिद, डर और बिला वजह की रोने की आदत को खत्म करने के लिए भी आप इहदिनस सिरातल मुस्तकीम और सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह का तावीज अपने बच्चों के गले में जरूर पहनाएं। ये नक्श मखसूस औकात में तमाम तर लवाज़मात के साथ और तमाम तर शराइत को मद्देनजर रखते हुए तैयार किए जाते हैं। इसलिए ये नक्श अल्लाह की मदद से कभी खता नहीं जाते, क्योंकि इन नकूश को वो हजरात तैयार करते हैं जो कि 5 वक्त की नमाज की पाबंदी के साथ साथ मुत्तकी और परहेजगार भी होते हैं और इसके साथ साथ उन्होंने इसमें आजम या कुद्दूस की ज़कात अकबर अदा की हुई होती है। इंशाअल्लाह इस नक्श और वजीफा की रूहानी बरकत से आपके बच्चे जिद, नाफरमानी और हर बुरी हरकत से रुक जाएंगे और तमाम जिंदगी अपने वालिदैन की फर्माबरदारी में गुजार देंगे। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में अर्ज किया है कि अल्लाह पाक की जात का हर नाम अपने अंदर इल्म शऊर और हकीकत के बेपनाह खजाने रखता है, जिसकी हकीकत को कोई भी नहीं पहुंच सकता। इसी तरह अल्लाह पाक के इस नाम के जितने भी फायदे बताते जाएं कम है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलती रहे। इंशाअल्लाह मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।